डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन भी देख चुके हैं। डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, ये भी बातें हो चुकी हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों के सामने आया था डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक में ही रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट आपके सामने आया था वो भी आपको पता है कि इफ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी satisfying some conditions. Number one, function should be continuous in closed interval AB. Number two, function should be differentiable in the open interval AB. And number three, at both the endpoints of the closed interval AB, the value of the function must be same. और अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं तो हम लोग स्टेटमेंट रोल्स स्टेटमेंट है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स 0। शायद आपको रूट थ्योरम याद आ गया। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम बताएगा। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसे आप लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जानते हैं। और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में आपसे कहा गया है कि फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सेटिस्फाइज सम कंडीशंस, जिसमें से पहली कंडीशन आपसे कही गई कि नंबर वन, function should be continuous in the closed interval AB. Number two, function should be differentiable in the open interval AB. If these two conditions satisfied with the function for the closed interval AB, then Lagrange's mean value theorem states that there exists at least one real number C between A and B such that f dash C equals fb minus fa upon b minus a। इसका अल्टरनेटिव फॉर्म भी आपने लिया था लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। उसमें आपने कहा था अनदर फॉर्म ऑफ द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, if a function f(x) defined on closed interval a plus x satisfying the sum conditions. Number one, function is continuous in the closed interval a plus x. Number two, function is differentiable in the open interval a plus x. Then Lagrange's mean value theorem states that there exists a real number theta. There exists a real number theta lies between 0 and 1 such that fa plus h minus fa equals f dash a plus theta s. And that is the another form of Lagrange's mean value theorem. Now, we start Cauchy's mean value theorem. Cauchy's mean value theorem. If a function f(x), if two functions f(x) and gx defined
on closed interval AB satisfying the following conditions, number one, fx and gx with both the functions are continuous on closed interval AB. Number two, fx and gx both are differentiable in open interval AB. And number three, g dash x not equal to 0 for any x belongs in closed interval A. Then, if these three conditions satisfied, then there exists at least one real number small c between A and B such that f dash c upon g dash c is equal to ft minus fa upon gb minus ga, where c is less than d and greater than a. This is the Cauchy's mean value theorem, जिसमें क्या गई two functions fx and gx defined on closed interval AB such that number one, both the functions are continuous in closed interval AB. Number two, both the functions are differentiable in open interval AB. And number three, g dash x not equal to 0 for any x's which belongs in the closed interval AB. Then Cauchy's mean value theorem states that there exists at least one real number, one value small c, or you may say one real number c of x in the closed interval AB such that f dash c upon g dash c is equal to fb minus fa upon gb minus ga. Proof of this theorem is approximately similar to Lagrange's mean value theorem. To prove this, we consider function phi x is equal to fx plus a into gx, where a is undetermined constant such that phi b is equal to phi a, या phi a is equal to phi b.
क्या गया, इसको प्रूफ करने के लिए एक फंक्शन कंसीडर किया गया फाई एक्स, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए इंटू जी एक्स। जो एफ एक्स और जी एक्स राइट हैंड साइड में आपने लिख रखा है, वह एफ एक्स और जी एक्स कुछ और नहीं है, वो वही दोनों फंक्शंस हैं जिनके बारे में क्वासीज मीन वैल्यू थ्योरम में कहा गया ये कंडीशंस इनके लिए सेटिस्फाइड हुई, तो प्रूव करके दिखाई। हाँ, एडिशनल उसमें आया कि जी एक्स में ए से कैपिटल ए से मल्टीप्लाई किया गया है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दैट इज अनडिटरमिन्ड कांस्टेंट, मींस दैट इज टू बी डिटरमिन्ड, उसको डिटरमाइन करना है। लेकिन ये भी कंसिडरेशन करते समय ये भी कहा जा रहा है कि सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी के दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन फाई एक्स की वैल्यू इक्वल है। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं दैट इज एक्स इक्वल से ए रखेंगे तो फाई ए इक्वल्स फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिलेगा एफ ए प्लस ए इंटू जी ए इज इक्वल टू, और फाई बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा एफ बी प्लस ए इंटू जी बी, इतना आ जाएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ए को डिटरमाइन करना है, तो ए जी बी को लेफ्ट में लाइए तो हो जाएगा ए इंटू ए कॉमन हो जाएगा, और आ जाएगा जी ए माइनस जी बी इज इक्वल टू एफ ए को राइट में ट्रांसपोज कर देंगे तो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। या इसको हम अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो जाएगा माइनस ए, और ये पॉजिटिव को पहले लिखा जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, इतना आ जाएगा। या यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। इतना तो आ गया, लेकिन अब थोड़ा सा जो कंसिडरेशन आपने फंक्शन का किया उसके बारे में विचार किया जाए। तो एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो आप यह भी जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन दिए गए इंटरवल में कंटिन्यूअस है या किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन दिए गए इंटरवल में कंटिन्यूअस है, दिए गए इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो उस कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो भी उसकी कंटिन्यूटी डिफेक्ट नहीं बढ़ता है, मतलब वह फंक्शन तब भी क्या होगा, कंटिन्यू। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन के एफ एक्स विल बी आल्सो कंटिन्यूअस इन द सेम इंटरवल। तो इसका मतलब दिस इज द सम अप टू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि sum of two continuous function is also continuous and sum of two differentiable functions is also differentiable. तो इसका मतलब this is the sum of two continuous function and sum of two continuous function is equal to क्या phi x है। तो sum of two continuous function अगर continuous होता है means phi x is continuous। sum of two differentiable function अगर डिफरेंशिएबल होता तो sum of two differentiable function is equal to phi x आप कह रहे हैं, फाई एक्स भी क्या है, डिफरेंशिएबल। तो अब यहां से आप लॉजिक दे सकते हैं कि फ्रॉम वन वी ऑब्जर्व दैट फाई एक्स, या आप ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम वन since sum of two continuous and differentiable function is also continuous and differentiable
therefore phi x is continuous and differentiable in closed interval AB, and phi A is equal to phi B. Thus, all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, and hence by Rolle's theorem there must exist at least one real number small c between A and B such that phi dash c is equal to 0. तो मैं से इट इज इक्वेशन नंबर 3. आपने यहाँ कहा कि since sum of two continuous function is continuous, sum of two differentiable function is differentiable, it means phi x is continuous in the closed interval AB, phi x is differentiable in the open interval AB, and number 3, according to our consideration, both the points of the closed interval AB, value of the functions are equal. Thus we find that the considered function satisfies all the requirement of Rolle's theorem, and therefore we can apply the Rolle's theorem for the given function. And according to Rolle's theorem, there must exist a real number c between A and B at which the derivative of the function will be 0. Means phi dash c is equal to 0. But from one, phi dash x is equal to f dash x plus a into g dash x. Therefore, in place of x we put c. We get phi dash c is equal to f dash c plus a into g dash c. But from equation 3, phi dash c is equal to 0, so 0 is equal to f dash c plus a into g dash c. And from here we can get minus a equals f dash c upon g dash c. Let me say it is equation number 4. Now using equation 4 in equation 2, we get f dash c upon g dash c is equal to fd minus fa upon gb minus ga, and this is a required result of Cauchy's mean value theorem. हाँ, अगर हमको ये रिमेम्बर हो रहा है कि जो हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया. लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करते समय जो कंसिडरेशन लिया था वह था phi x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स. ये कंसिडरेशन था, एफ एक्स प्लस ए एक्स. जबकि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो कंसिडरेशन लिया जा रहा है वह phi x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए जी एक्स. In place of gx there was x.
and remaining consideration was same, that is phi a is equal to phi u. So it means if we take in Cauchy's mean value theorem gx equals x, then we can get Lagrange's mean value theorem easily. Thus we can say that Lagrange's mean value theorem is a particular case of Cauchy's mean value theorem. You can say Lagrange's mean value theorem is a particular case of Cauchy's mean value theorem. हाँ, अगर हम Cauchy's mean value theorem में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, अगर हम if we take b equals a plus h, then it means c is less than a plus h and greater than a, because here c lies in the open interval ab. C lies between ab. If we take b equals a plus h, then it may be written as a is less than c is less than a plus h. Subtracting a from this inequality, this is a minus a is less than c minus a is less than a plus h minus a. On simplifying, we get 0 is less than c minus a is equal to theta. You may say is less than a cancel out is less than h. Or we may write 0 is less than c minus a upon h is equal to theta. Say is less than 1. By dividing it, we can get this. Or we may write 0 is less than theta is less than 1, where theta is equal to c minus a upon h, or we may write h theta is equal to c minus a, or we may write c is equal to a plus theta h. Thus, in this situation, the Cauchy's mean value theorem will be if two functions fx and gx defined on closed interval a plus h such that number 1, fx and gx both are continuous on closed interval a plus h. Number 2, fx and gx both are differentiable in open interval a plus h. Number 3, g dash x not equal to 0 for any x belongs in open interval a plus h, then there exists theta is less than 1 greater than 0 such that a Lagrange Cauchy's mean value theorem will be f dash a plus theta h upon z dash a plus theta h is equal to fa plus h minus fa upon ga plus h minus g, and that is our result, means that is
which is another form of Cauchy's mean value theorem. That is another form of Cauchy's mean value theorem. अब हम लोगों ने यह भी देख लिया कि Cauchy's mean value theorem होता क्या है। दूसरा यह भी डिस्कशन कर लिया कि Cauchy's mean value theorem का पर्टिकुलर केस Lagrange's mean value theorem means Lagrange's mean value theorem can be obtained with the help of Cauchy's mean value theorem. Means Lagrange's mean value theorem is a particular case of Cauchy's mean value theorem. दूसरा यह भी देख लिया कि Lagrange's Cauchy's mean value theorem का भी एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। अगर दिए गए दोनों फंक्शंस दिए गए इंटरवल, जो इंटरवल आपका था a प्लस h रख रखा था, उस कंडीशन में कहा गया था अगर दिया गया फंक्शन, दोनों फंक्शंस दिए गए इंटरवल के लिए सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हों, तो अनदर फॉर्म में आपने कहा कि f डैश a प्लस थीटा h अपॉन g डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल टू f a प्लस h माइनस f a अपॉन g a प्लस h माइनस g a, पर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं, फाइंड एग्जाम्पल फाइंड शी ऑफ Cauchy's mean value theorem for the following functions. For the following functions. Number 1, fx equals e to the power x and gx equals e to the power minus x Number 2, fx equals sin x and gx equals cos x. fx equals लिया गया है sin x and gx equals cos x. या fx equals ले लेते हैं क्वेश्चन रूट x and gx equals 1 upon root x. And third question is fx equals sin x and gx equals cos x. Find C of the Lagrange's mean value theorem for the following functions in the given interval. सॉल्यूशन के लिए आएंगे तो आपको Cauchy's mean value theorem में मालूम है। अगर पहला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप ये कह सकते हैं given that नंबर 1 दिया गया है fx equals e to the power x and gx equals e to the power minus x. अब अगर आपको Cauchy's mean value theorem अच्छी तरीके से आता है तो इन दोनों का डेरिवेटिव भी हम पूछेंगे। therefore f dash x इक्वल्स हो जाएगा e to the power x and g dash x इक्वल्स हो जाएगा माइनस e to the power minus x. अब अगर ये दोनों चीजें मालूम है तो अब आप कह सकते हैं बाई Cauchy's mean value theorem, बाई Cauchy's mean value theorem कम भी है। Cauchy's mean value theorem क्या है वो आप मानो, f डैश c अपॉन g डैश c इज इक्वल टू fb
माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी। ये आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। आपको चाहिए क्या? एफ बी। तो एफ बी क्या होगा वो भी बता सकते हैं। एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर बी। एफ ए क्या होगा वो भी आप बता सकते हैं, दैट इज e टू दी पावर। जी डी क्या होगा वो भी बता सकते हैं, e टू दी पावर माइनस बी। और जी ए क्या होगा e टू दी पावर माइनस। सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर रखा है। आपको चाहिए क्या? एफ डैश सी। अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स ई टू दी पावर एक्स है तो एफ डैश सी क्या होगा वो भी आसानी से बताया जा सकता है, ई टू दी पावर सी अपॉन जी डैश सी। जी डैश एक्स इक्वल्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो जी डैश सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस सी इज इक्वल टू एफ बी। एफ बी इज ई टू दी पावर बी minus f is e to the power e upon gb is e to the power minus b and ga is e to the power a। अब इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं e to the power माइनस c को न्यूमरेटर में ले आए तो जाएगा इंटू e to the power c इज इक्वल टू e to the power b माइनस e to the power a अपॉन ये लिख सकते हैं 1 अपॉन e to the power b माइनस 1 अपॉन e to the power a। या इसको लिख सकते हैं माइनस, बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगे c प्लस सी इज इक्वल टू माइनस e to the power b माइनस e to the power a अपॉन एलसीएम लेंगे तो e टू दी पावर a माइनस e टू दी पावर b अपॉन e टू दी पावर b इंटू e टू दी पावर a। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा माइनस e टू दी पावर 2c इज इक्वल टू e टू दी पावर b माइनस e टू दी पावर a। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो जाएगा e टू दी पावर b माइनस e टू दी पावर a। रेसिप्रोकल कर देंगे, बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगे e टू दी पावर a प्लस b। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो बचेगा माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, e टू दी पावर 2c इज इक्वल टू e की पावर a प्लस b। बेस समान तो पावर को कंपेयर करेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू आपको मिला 2c। और इनमें से c इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ये आपको रिजल्ट मिल गया c इक्वल्स a प्लस बी बाई 2, जो कि आपको फाइंड आउट करने कहा गया था इन दिए गए फंक्शन से c का मान बताइए। तो जो पहला एग्जाम्पल लिया आपने एफ एक्स जी एक्स लिख लिया, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स निकाल लिया, एफ डी एफ जो भी होता है जी ए जी बी सब आपने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया तो c जो आया रिजल्ट तो c इक्वल्स आपको मिला a प्लस बी बाई 2। यही दिए गए प्रॉब्लम के लिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का c हुआ। एंड दैट इज सो दैट if for the given function f(x) equals e to the power x and g(x) equals e to the power minus x, c is the arithmetic mean of a and b। इस प्रॉब्लम को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि prove that for the following function f(x) equals e to the power x and g(x) equals e to the power minus x, c is the arithmetic mean of a and b। ऐसे भी इस थ्योरम को पूछा जा सकता है। That's all। प्रॉब्लम को पूछा जा सकता है। एक और देख ले, एक आप अपने से कर लीजिएगा। पहला ये लिया है एफ एक्स इक्वल्स नंबर 2, एफ एक्स इक्वल्स है आपका रूट एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स है आपका 1 अपॉन रूट एक्स। ऑब्वियसली यहाँ से आप कह सकते हैं therefore एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा रूट ए, जी सॉरी एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा वो भी आप बता सकते हैं रूट बी हो जाएगा। फिर आप यह भी बता सकते हैं कि जी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट ए, जी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आसान सा
1 अपॉन रूट बी, ये भी हो गया। और क्या चाहिए, एफ डैश यस चाहिए, एफ डैश यस इज इक्वल टू हो जाएगा एस टू द पावर हाफ कर दो, एस टू द पावर हाफ का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाएगा हाफ यस टू द पावर हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ, कुल मिला के आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट यस। ऐसे ही जी डैश यस आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी आएगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट यस, सॉरी जी डैश यस आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस हाफ, और एक्स टू द पावर माइनस हाफ को डिफरेंशिएट करें तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ होगा माइनस हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1 दैट इज एक्स टू द पावर माइनस 3/2। You can write it this way. Therefore, f dash c is equal to 1 by 2 root c. You can write, and g dash c is equal to minus 1 by 2 into c to the power minus 3/2. You can write it this way. Thus by Lagrange, sorry, Cauchy's mean value theorem, आप Cauchy's mean value theorem करेंगे और सीधे सीधे सारे रिजल्ट को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो f dash c आपको जो मिला हुआ है वह आपको मिला है 1 अपॉन 2 c टू द पावर माइनस हाफ अपॉन जी डैश सी आपको मिला हुआ माइनस हाफ इंटू c टू द पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू एफ बी दैट इज रूट बी, एफ ए दैट इज रूट ए, जी बी दैट इज 1 अपॉन रूट बी एंड जी ए दैट इज 1 अपॉन रूट ए। सिंप्लीफाई किया जाए, इस हाफ से यह हाफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस को ऐसे रख दें, सी टू द पावर माइनस हाफ और सी टू द पावर माइनस 3/2 को न्यूमरेटर में लाएंगे तो प्लस 3/2 हो जाएगा, तो अगर प्लस 3/2 इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम लें तो जाएगा रूट बी माइनस रूट ए अपॉन माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ आपका आ जाएगा रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट ए इंटू रूट बी। फाइनली देखेंगे आप तो ये हो जाएगा माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, सी माइनस आप प्लस 3/2 करेंगे तो हो जाएगा सी 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 2/2 एंड 2/2 मीन्स 1। तो सी इक्वल ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे ये दोनों का ये से ये कैंसिल हो जाएगा और इससे कोपल करेंगे तो आ जाएगा रूट ए बी। तो सी इक्वल्स आपको मिल गया रूट ए बी एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सी for the Cauchy's, this is the required C for the given functions in according to Cauchy's mean value theorem. And see in the similar way you can solve the problem number 3 of this example. Thank you. Next lecture video lecture में हम लोग next topic start करेंगे. Thank you.